Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today I am Brajendra Kumar Patel, PGT Chemistry, JNV Golaghat, Assam. I am going to discuss about the trends in periodic table. So this video is actually for class 11, not only for class 11, also for class 12 for competition purpose. But basically it is included in the syllabus of class 11, unit number 3, that is classification of elements and periodicity in properties. So in my previous video we have discussed about the modern periodic table and the features of modern periodic table. So today we will discuss about the trends in periodic table. So first trend or first property, it is atomic radii. So students, you know what is atomic radii? It is defined as the distance between nucleus and the outermost cell of an atom. So simply an atom, it is supposed it is spherical in shape. Okay, so the radius of the sphere, it is simply it's equal to the distance between nucleus and the circumference. So like that, atomic radii, it is defined as the distance between nucleus and outermost cell of an atom. But here this is a difficult task to calculate the atomic radii of an individual atom, because atom is very small particle. So for this very small particle, it is very difficult to measure its atomic radii. So what we use, actually we calculate atomic radii by measuring the covalent radii and metallic radii. Actually atomic radii, it is an indirect measurement. How? So see, first let's see the covalent radii. This covalent radii is the half of the distance of the atoms in the molecule bonded with single covalent bond. Okay, so single covalent bond means simply see here, suppose this is an atom, this is second atom. So these two atoms are bonded with covalent bond. So what is covalent bond? This covalent bond is like this. So what will be the radius in this case? So the radius, it will be equal to the half of this length. This is equal to half of which length? Half of, this is the distance between two nucleus, and its half, it is equal to atomic radii. So what we are going what here I am saying, a simple, this covalent radii, it is equal to the half of the distance. Okay, so this is in covalent bond, but here the condition is, in covalent radii the atoms, this should be same. For example, if we are going to calculate the atomic radii of chlorine, okay, so क्लोरीन एटम, इसके लिए हमें एटमिक रेडियाई कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे कि जिस भी एटम की रेडियाई हमें कैलकुलेट करना है, उसी एटम से बना हुआ हम मॉलिक्यूल लेते हैं, सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल. मतलब यदि हमको क्लोरीन एटम के लिए यदि कैलकुलेट करना है तो हम क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे. सो इन केस ऑफ क्लोरीन एटम, Cl2 जो मॉलिक्यूल है, इस Cl2 मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस होती है 198 पिकोमीटर. ओके, मॉलिक्यूल की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 198 पिकोमीटर. तो इसकी रेडियाई कितनी होगी? 99. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने सेम एटम्स क्यों लिए हैं. क्लोरीन, हम छोटा एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन भी तो ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सपोज हमने एक क्लोरीन लिया और एक छोटा सा हाइड्रोजन लिया, तो क्या हम ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ कितना होगा? इस डिस्टेंस का हाफ होगा यहाँ से. बट हम इसमें क्या लेंगे? इसका हाफ एक्चुअली कहाँ से? यहाँ से निकलेगा. तो हम इसका जस्ट हाफ एटमिक रेडियाई नहीं कह सकते, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम के लिए देखो ये लेंथ जो है ये इंक्रीज अपनी इसकी रेडियाई से बड़ी है, और क्लोरीन के लिए जो एक्चुअली लेंथ होनी चाहिए वो यहाँ तक होनी चाहिए थी, बट हमको कहाँ तक मिलेगी? यहाँ तक मिलेगी. तो इसलिए हम जो मॉलिक्यूल लेंगे वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? सेम एटम से बना होना चाहिए. सो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई. तो जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ वो है कोवेलेंट
रेडियाई। सेकेंड आता है मेटलिक रेडियाई। तो मेटलिक रेडियाई क्या होगी? दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द कोर ऑफ द मेटलिक क्रिस्टल्स। कोर ऑफ द मेटलिक क्रिस्टल्स क्यों कहा हमने यहाँ पर? क्योंकि जो मेटल है, ये मेटल एक्चुअली क्रिस्टल फॉर्म में रहती हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसको हम स्फीयर तो कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिस्टल का शेप अलग अलग होता है। ये वी विल सी अबाउट द क्रिस्टल्स इन क्लास 12। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर इन विच द cubic crystal, cube, monoclinic, triclinic, rhombic, orthorhombic, and many more systems are there. So here सिंपल ये देखना है कि जो मेटलिक रेडियाई है वो क्या होगा? मेटल एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में तो कोर होगा, तो हम क्या लेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग बाय द कोर ऑफ द मेटलिक क्रिस्टल। तो सिंपल से इसको हम समझें, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लें, सिंपल से इसको समझना है हमको कि जो मेटल है, मेटल में जो दो एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ वो होगी उसकी रेडियाई। तो इस तरीके से हम देखें एटमिक रेडियाई क्या है। एटमिक रेडियाई इनडायरेक्ट हम मेज़र करते हैं। पहले मॉलिक्यूल में न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो वो एटमिक रेडियाई बन जाएगा। सो अब इस एटमिक रेडियाई में देखना है हमको, ये एग्जांपल है इसमें कोवेलेंट रेडियाई के लिए, कि ये कोवेलेंट रेडियाई हम किसके लिए ले रहे हैं? क्लोरीन के लिए। तो ये दो क्लोरीन एटम्स जो कि स्फेरिकल शेप में है, इनकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हमने येलो लाइन से शो किया है। तो इस येलो लाइन की लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज 198 पिकोमीटर। ये लेंथ कितनी है? 198 पिकोमीटर। तो इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ होता है 99 पिकोमीटर। तो ये हाफ देखिए इसमें, तो एटम की रेडियाई कितनी होगी? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। और ये दोनों एटम्स क्या होने चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। तो इस तरीके से एटमिक रेडियाई को हम कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर एटमिक रेडियाई अब हम देखेंगे, एटमिक रेडियाई के बाद अब हमको देखना है कि इस एटमिक रेडियाई में क्या चेंजेस होते हैं जब हम ग्रुप में मूव करेंगे और पीरियड में मूव करेंगे। सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स, these are the actually what are groups? So simple, groups means groups means the columns, these are known as groups, and the rows, these are known as periods. So what happens if we move in a group? So group में move करने का मतलब क्या? group में move करना मतलब ये हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये होता है ग्रुप में मूव करना। और पीरियड में मूव करने का मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम पीरियड में मूव करेंगे। ओके, सो इस कंडीशन में देखना है हमको कि क्या होगा जब हम ग्रुप में मूव करेंगे और पीरियड में मूव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जैसे ही आप मूव करेंगे डाउन इन अ ग्रुप, द एटमिक रेडियाई इट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से मतलब ये है कि आप देखो, सिंपल से इसमें देखना है कि लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सो फॉर लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। इट मीन्स द कन्फिग्रेशन इट विल बी 2 1। 2 1 मीन्स लिथियम का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है कि इस लिथियम का। लिथियम के बाद जैसे ही आप जाएंगे कि इसमें सोडियम में, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स कन्फिग्रेशन इसका होगा 2 8 1। तो इस 2 8 1 में कितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिलेंगे? 1 2 3। तो 2 8 1। सो हियर यू कैन सी दिस डिस्टेंस। ओके, इस डिस्टेंस को कंपेयर करना है, और किस डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे आप? इस डिस्टेंस के साथ इस डिस्टेंस को कंपेयर करें तो क्या दिखेगा हमें? कौन सी डिस्टेंस इसमें बड़ी होगी? सो सिंपल, सोडियम के केस में आपको डिस्टेंस इसमें दिख रहा है, द डिस्टेंस इन सोडियम इट इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस इन लिथियम। सो इससे सिंपल क्लियर हो रहा है क्यों ये डिस्टेंस में इंक्रीज़ हो रहा है। डिस्टेंस में इंक्रीज़ होने का मतलब रेडियस इंक्रीज़ हो रही है। तो क्यों रेडियस इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि लिथियम में सिर्फ 2 ऑर्बिट हैं और सोडियम में 3 ऑर्बिट्स हैं। तो जैसे ही आप डाउन जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज़ होते जाएगा, इसीलिए इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। और साइज़ यदि इंक्रीज़ होता है तो फिर डेफिनेटली रेडियाई भी इंक्रीज़ होगी। सो एटमिक रेडियाई इट इंक्रीजेज मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नाउ सेकेंड इज पीरियड। सो वैल्यू से भी आपको क्लियर होगा कि लिथियम के लिए जो रेडियस की वैल्यू है 152 पिकोमीटर,
सोडियम के लिए 186 पिकोमीटर, 231 पिकोमीटर, 244 पिकोमीटर, एंड फॉर सीजियम इट इज़ 262 पिकोमीटर। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। नाउ लेफ्ट टू राइट क्या होगा? तो लेफ्ट टू राइट में आप देखो लिथियम के लिए 152, बेरिलियम के लिए 111, बोरॉन के लिए 88, कार्बन के लिए 77। तो ये डिक्रीज हो रही है। अब क्यों डिक्रीज हो रही है? तो उसका रीज़न आएगा एज वी मूव लेफ्ट टू राइट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? तो सिंपल से इसको समझना है। ये न्यूक्लियस हो गया। हम एग्जांपल लेते हैं किसका? लिथियम का। सो लिथियम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 हैं। इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 में आप देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हेयर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोटॉन्स, 3 न्यूक्लियस मतलब 3 प्रोटॉन्स। तो 3 प्रोटॉन्स इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच का अट्रैक्शन कितना होगा इसको आप सपोज मान के चलिए, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम बेरिलियम में आते हैं। तो बेरिलियम के केस में क्या होगा? बेरिलियम में ये हो जाएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एंड 2। सेकेंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप मूव करेंगे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स से क्या होगा कि जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास जब एटॉमिक नंबर 4 है इसका, तो इसका मतलब 4 प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में। तो अब ये 4 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पावर किसकी ज़्यादा होगी? 3 प्रोटॉन्स की या 4 प्रोटॉन्स की पावर ज़्यादा होगी? सो डेफिनेटली 4 प्रोटॉन्स की पावर ज़्यादा है। इसलिए 4 प्रोटॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा। क्लोज जाएगा तो इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करें, मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बाय 1 प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएगा, 1 1 1 इंक्रीज होगा। लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन। सो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, सो जैसे जैसे मूव करेंगे एक एक प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएगा, इसलिए डिस्टेंस भी कम होगी। तो इस तरीके से पीरियड में जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती जाती है। अब इसमें वैल्यू से तो आपको क्लियर है कि वैल्यूज़ में क्या हमने इस वैल्यू में शो करने की कोशिश की है। तो ये सब क्या हुआ? एटॉमिक रेडियाई की जो वैल्यू वो किस में है? पिकोमीटर में। सो दिस इज द पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियाई व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट। नाउ सी नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो हमने देख लिया। अब आयनिक रेडियाई में क्या वेरिएशन होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और डाउन इन अ ग्रुप मूव करेंगे? सो पहले देखो आयनिक रेडियाई क्या होगी। आयनिक रेडियाई में जब हम व्हेन एन एटम इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन और इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म्स आयन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनायन में क्या चेंजेस होंगे। सो एनायन के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है, हम लेते हैं एग्जांपल किसका? क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। जब ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है। एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए साइज जो है इसका इंक्रीज होगा। सो सी size of anion, it is bigger than parent atom because an extra electron is added in the outermost cell, which results the decrease in effective nuclear charge. Chloride ion is bigger than chlorine atom. C क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में क्या हो रहा है? Cl एटॉमिक नंबर इज 17, सो कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा? 287। 287 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे और 17 प्रोटॉन्स होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट जैसे ही एक आयन का फॉर्मेशन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। अब इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन अभी भी 17 है। तो इस केस में क्या हो रहा है? प्रोटॉन की पावर कम हो रही है। प्रोटॉन की पावर कम है मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितनी पावर से वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था।
सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स जो है वो कम हो रहा है, कंपेरेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 17 प्रोटॉन सफिशिएंट है, बट 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 17 प्रोटॉन्स की पावर कम हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करते हैं प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन की पावर कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल में नहीं जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब धीरे धीरे प्रोटॉन जो आयन है उसका साइज इंक्रीज होगा। तो ये इसमें आप देखो कि ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं, ओके। और यहाँ पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर भी सफिशिएंट अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो अब इनकी पावर क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ 17 प्रोटॉन है तो 17 प्रोटॉन की पावर कम हो गई। ऐसी कंडीशंस में ये जो फोर्स है, ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे आपने सिंपल से एग्जांपल देखना कि एक स्टोन लीजिए, स्टोन को आप रस्सी से बांध दीजिए और उसको चारों तरफ घुमाइए हाथ से पकड़ के, तो स्टोन जो है वो बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं आएगा। उसको जब आप रस्सी को घुमा रहे हैं आप, तो उसका एक सर्कुलर पाथ बन जाता है, और उस सर्कुलर पाथ को छोड़ करके वो जो स्टोन है वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पर रस्सी उसको अंदर खींचे रखती है। वो अंदर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है। तो जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर उसकी जो ऑर्बिट है, स्टोन की ऑर्बिट, वो फिक्स हो गई। वही केस इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होंगी तो फिर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, वो फोर्स कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। सेम वही कंडीशन बनेगी कि आप स्टोन को जब घुमा रहे हैं तो बीच में रस्सी को काट दीजिए, छोड़ दीजिए, तो स्टोन कहाँ जाएगा, स्टोन बाहर चला जाएगा। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो इसका साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज हो जाएगा। सो ये पेरेंट एटम से यदि हमने कंपेयर किया है क्लोराइन को, तो पेरेंट एटम के कंपेयर में एनायन का साइज बड़ा होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड इज की पॉइंट क्या याद रखना है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी द साइज ऑफ एनायन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब क्या है कि हम अब एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम मैग्नीट्यूड से, ये एग्जांपल लेते हैं हम किसका, सपोज द एग्जांपल इज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। तो 7 मतलब 2 5। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 6। अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन इसका साइज बड़ा होगा। तो ये है नाइट्रोजन। अब ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन सिंगल माइनस। फिर से एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 7, और ये बना लेगा n-2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। और लास्ट में फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करे 2 8, इस कंडीशन में ये बनाएगा n-3। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो सिंपल सा इसमें कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा एनायन का साइज भी इंक्रीज होते जाएगा। तो सिंपल सा इसको याद रखना है, पेरेंट एटम के कंपेयर में एनायन का साइज बड़ा होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा एनायन का साइज उतना बड़ा होगा। तो -1 से -2 बड़ा होगा, -2 से -3 बड़ा होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। सो दिस इज द की पॉइंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अभी तो हमने एनायन का साइज देखा, अब हम देखेंगे साइज ऑफ कैटायन। सो कैटायन के लिए स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड विच रिजल्ट्स द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का, Na का एटॉमिक नंबर है 11। सो कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2 8 1। 2 8 1 के लिए इसके लिए हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बनाएं तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन सेकेंड 8, इन थर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तो हो गया इसका कन्फिग्रेशन। अब इस कन्फिग्रेशन में देखिए कि सोडियम जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा,
2 8 2 8 मतलब अब इसका साइज कितना हो जाएगा, तो इसमें कितने ऑर्बिट्स रह जाएंगे, सिर्फ 2 ही ऑर्बिट रह जाएंगे। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि साइज किसका छोटा होगा, तो कैटायन का साइज पेरेंट एटम के साइज से छोटा होता है। और फिर वही देखेंगे हम कि जितना चार्ज इंक्रीज होगा साइज उतना छोटा होते चले जाएगा। अब रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न सिंपल सा है कि जब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसके पास क्या है, 11 प्रोटॉन है। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो इसमें क्या होगा, 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस इक्वल है। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसके पास बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो यहाँ प्रोटॉन की पावर इंक्रीज हो गई। जब प्रोटॉन की पावर इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और क्लोज हो जाएंगे, मतलब साइज छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइज छोटा होते जाएगा। एक्चुअली प्रोटॉन की पावर इंक्रीज नहीं हो रही है, कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज हो रहा है। देखिए सोडियम से तो ये क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं एग्जांपल किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मतलब इसमें होगा 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके पास रह जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स। ये किसके लिए केस हो रहा है, एल्यूमिनियम सिंगल प्लस के लिए। ये एल्यूमिनियम के लिए है और ये Al प्लस के लिए। तो प्रोटॉन की पावर इंक्रीज हो गई इसलिए साइज इसका छोटा हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देते हैं हम, Al+2 बनाएगा, तो फिर यहाँ 13 प्रोटॉन्स तो एज इट इज़ रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्रोटॉन की पावर और ज़्यादा हो गई, कंपेरेटिवली पावर ज़्यादा है। एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ सेम, the number of electrons it is decreasing, that's why the relative power of the proton it is increasing, that's why it is attracting the 11 electrons more strongly, so that's why the size will reduce। and last फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो Al3+, तो Al3+ में प्रोटॉन्स तो 13 ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रहेंगे। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, इस कंडीशन के कारण साइज सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे छोटा साइज होगा एल्यूमिनियम +3 का। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा साइज +2, उसके बाद वो सबसे बड़ा साइज होगा पेरेंट एटम का। तो कैटायन के केस में क्या है, पेरेंट एटम इसका साइज बड़ा होगा और कैटायन का साइज छोटा होगा, जबकि एनायन में पेरेंट का साइज छोटा होता है और एनायन का बड़ा होता है। तो ये है इसमें कैटायन के केस में। नाउ सी सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। अब इसमें की पॉइंट क्या है, सो की पॉइंट इज ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ एनायन। तो ये दो कंसेप्ट याद रखना, एक तो एनायन का, इसको नोट कर लेना कॉपी में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स वाई इसको हमने की पॉइंट कहा है। सो एनायन के केस में चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, कैटायन के केस में चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आयनिक रेडियाई का ही पार्ट है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, these are the species having same number of electrons and are called isoelectronic species। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब अब आप कंपेयर करो, कंपेयर क्या करना है, कंपेयर यहाँ ये करना है कि एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर है 13, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। तो जब एल्यूमिनियम से Al3+ बनेगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें 10। Mg2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है 10। नियॉन इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसमें हो गया 10। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 10। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 10। तो ये जो हमारे पास स्पीसीज़ हैं इसमें कैटायन भी है, एनायन भी है और न्यूट्रल एटम भी है। तो इन केसेस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होनी चाहिए, उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इनके साइज में क्या चेंज आएगा, तो साइज में देखो हमने कंपेयर क्या किया, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट साइज कैसे कम होता है। तो एल्यूमिनियम 3+ साइज जितना ज़्यादा होगा, मतलब कैटायन में चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, और एनायन में चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, काउंट करो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम में 13 होंगे, तो 13 और 10 में से पावर किसकी ज़्यादा है, 13 की पावर ज़्यादा है, साइज़ बहुत छोटा होगा। यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ी सी इसकी पावर कम हो रही है। 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पावर और कम हो गई, और 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन है। तो इनमें से क्या होगा, इनका साइज़, इसका साइज़ सबसे छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होगा, इससे थोड़ा बड़ा साइज़, इसके साइज़ के कंपेयर करें। अब आते हैं फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो साइज़ बड़ा होगा। पर कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें आप कंपेयर करो, सो द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ 2, सो साइज़ और बड़ा होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो साइज़ इसमें और बड़ा होगा। तो अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में देखते हैं कि साइज़ जितना बड़ा होगा, ठीक है, साइज़ किस पर डिपेंड करेगा, चार्जेस पे। पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा होगा साइज़ उतना छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें साइज़ का ऑर्डर क्या मिलेगा, इसमें हमको साइज़ का ऑर्डर ये मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन कौन सी हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनको साइज़ के बेस पे अरेंज करना है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।